Hello friends, welcome to our YouTube channel The Vedic Gurus. Today we are going to explain exercise 7.1 of NCERT book, 7th chapter coordinate geometry, in which we are going to use the formula distance formula. The complete derivation and explanation of the distance formula you will get by pressing the I button given to you at the top right corner. Now let us start with the help of distance formula, how to simplify the questions given in exercise 7.1. So we'll start with the first question. Find the distance between the following pair of points. First part, we are given 2 points. Suppose point P having coordinates 2, 3 and second point Q having coordinates 4, 1. We want to calculate the distance between these 2 points P and Q. So this is point P and this is Q, and we want to calculate the distance between these 2 points, say PQ. So we know the distance formula. I'm writing here once again. Distance formula PQ is equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. PQ is equals to square root of, we want to put the values of x1, x2 and y1, y2. So here in this point P, this is x1 x coordinate and this is y1 y coordinate. Similarly here in point Q, this is x coordinate x2 and y coordinate y2. So we are going to put these values of x1 y1 and x2 y2 in the formula, distance formula. x2 is 4 minus x1 is 2, so 4 minus 2 whole square plus y2 is 1 minus y1 is 3. So 1 minus 3 whole square. We get PQ is equal to square root of 4 minus 2, 2 and 2 square is 4 plus 1 minus 3 minus 2 whole square, which is equals to 4 plus minus 2 square again 4. So 4 plus 4, 8, yani root 8. Now we are moving towards the second point in which we are given the coordinates. So this is point P and this is point Q. Coordinates of point P are minus 5, 7 and minus 1, 3. So this is x1, y1 and this is x2, y2. We want to calculate the distance PQ. Again we are going to use the distance formula. I am writing it here, distance formula PQ is equals to, you have to write the formula in each and every part so that it can be remembered very easily. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now PQ is equal to, put the values of x1, y1 and x2, y2. x1 is minus 5, x2 is minus 1. So we want to write x2 minus x1. x2 means minus 1 minus x1 means minus 5. Like this whole square plus y2 means 3 minus y1 means 7. 3 minus 7 whole square. In the next step we have PQ is equal to square root of minus 1 minus minus plus 5 whole square plus 3 minus 7 minus 4 whole square, which is equal to square root of 5 minus 1 4 and 4 square is 16 plus again minus 4 square is again 16 and 16 plus 16 is root 32. So the distance between points PQ is square root of 32. Let's move towards the third part. In the third part we are given, so this is x1 y1 first point and this is x2 y2 coordinates of the second point. You can assume it as P and Q as like this. So coordinates I am writing again AB and Q, it is minus A minus B, and we want to calculate the distance between these 2 points, that is this distance PQ, by using the distance formula. The distance formula, very easy formula. You can write PQ is equals to square root of
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. PQ is equals to square root of x2. The value of x2 is this one, minus b, minus x1, value of x1 is this one, a whole square plus y2 again, no, it is not the exact value of x2, the x coordinate, this is the value, minus a, minus x1 is a again, so minus a whole square plus similarly y2 is minus b, the y coordinate, minus y1, that is b whole square. So PQ is equals to square root of minus a becomes minus 2a whole square plus minus b becomes minus 2b whole square. PQ is equal to minus 2 square 4 a square plus again minus 2 square 4 again b square. So you can take 4 common from these two terms, from here and here as well, 4 common, we'll get a square plus b square inside the bracket. 4, the square root of 4 is 2, so you can write 2 outside the square root and it becomes a square plus b square inside the square root. So distance between 2 points P and Q is 2 times of square root of a square plus b square. Second question में लिखा है find the distance between the points 0 0. Suppose this is point P having coordinates 0 0 and the point Q, say point Q having coordinates 36 and 15. इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2. और हमें पता है कि जब भी आपको दो पॉइंट्स P और Q के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. आप लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं. क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो PQ इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज हैं x1 x2 की और y1 y2 की यहां पुट करनी है हमने. देखिए x2 माइनस x1 लिखना मतलब x2 का मतलब है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q 36 माइनस x1 का मतलब है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P यानी 0. तो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली y2 मींस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q 15 माइनस y1 मींस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट इज 0 होल स्क्वायर. तो PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0 36 ही होता है तो 36 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 होता है तो 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 36 1296 प्लस 15 स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई 15 225. तो PQ इज इक्वल्स टू आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए. व्हाट विल गेट? यू विल गेट 1521 and square root of 1521 is equals to 39. So 39 units is the distance between these 2 points P and Q. आगे पूछा है can you now find the distance between the 2 towns A and B discussed in section 7.2. आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में आर्टिकल 7.2 में दो टाउन्स दिए हुए हैं A और B. उसने पूछा क्या आप उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप लिख देंगे यस वी कैन calculate the distance between two towns A and B by using कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से. by using डिस्टेंस फॉर्मूला कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन. लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर. ये 3 पॉइंट्स हमें चेक करने हैं कि कोलिनियर है या नहीं. कोलिनियर का मतलब होता है, पहले आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर देते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स जब भी दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं. इफ 2 or more points lie on a same straight line then they are called collinear points. So when 2 or more points lies on the
सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए 3 पॉइंट्स, तब वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो क्या करेंगे, लेट्स सी, लेट assume that this point 1 5 is called A, this point 2 3 as B, and this point -2 -11 as point C। अब हम चेक करेंगे कि 3 पॉइंट्स ABC कोलिनियर है या नहीं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, AB का, BC का और CA का। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स AB इज स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो लेट अस सी, दिस इज कॉल्ड x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर, देखिए x2 - x1, x2 है पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट यानी कि 2, माइनस x1 है पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट यानी 1, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का मतलब y2 है पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट 3 माइनस y1 पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट यानी 5, 3 - 5 होल स्क्वायर। क्या बचेगा, 2 - 1 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 5 - 3 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 इज इक्वल्स टू √5। तो AB जो डिस्टेंस आ गया वो √5 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस BC। BC के लिए अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखिए जो ये x1 y1 था, अब यहां से हटा देते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर, देखिए BC की स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, x2 है पॉइंट C का y x कोऑर्डिनेट -2 माइनस x1 मींस 2, तो -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट तो हमने लगा दिया पहले से। अब हमें लिखना है y2 - y1, मतलब -11 और y1 की जगह -3 होल स्क्वायर। तो ये बन गया, देखिए -2 - 2 -4 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 -14 होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का 196, दोनों को ऐड कर दीजिए, बन जाएगा √212। सिमिलरली नाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस CA। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, देखिए पॉइंट C के कोऑर्डिनेट फिर से एक बार, x2 y2 -2 -11, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, से x1 y1, और वो थे 1 5, और फॉर्मूला वही जो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर से लिख रहा हूं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 - 1 -3 और -3 का स्क्वायर 9, -11 - 5 -16 और 16 का स्क्वायर 256। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256 + 9 265। सो पॉइंट्स अब आप लिख देंगे, हमें कोलिनियर चेक करना था, तो कोलिनियर की कंडीशन क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला में, कंडीशन है पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर if the sum of 2 points AB plus BC is equal to CA। यानी दो डिस्टेंसेस AB और BC को अगर ऐड करें और वो डिस्टेंस ऐड करने के बाद CA के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब दे आर नॉट कोलिनियर। तो AB की वैल्यू क्या आई थी, देखिए √5, और BC की वैल्यू आई थी √212 और CA की वैल्यू आई थी √265। क्लियर है, इन दोनों को ऐड करके ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो AB + BC इज नॉट इक्वल टू CA, therefore AB plus BC is not equal to CA, therefore points A, B and C are नॉन कोलिनियर, मतलब कोलिनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते हैं, कहीं और लाई कर सकते हैं।
Let's take question number 4. Check whether the points 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle के vertices चेक करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि isosceles triangle कौन सा होता है. Isosceles triangle की प्रॉपर्टी होती है when any two sides of a triangle are equal. किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है. तो हमारे पास ये तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, लेट कर लेते हैं. पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स 5 माइनस 2, दूसरा वर्टेक्स है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6 4 और तीसरा मान लेते हैं सी 7 माइनस 2. तो हम तीनों डिस्टेंस यानी तीनों साइड्स कैलकुलेट करेंगे ए बी बी सी और सी ए, और अगर कोई भी दो इक्वल आ गई तो कह देंगे यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो देखिए सबसे पहले ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपको पता है. लिख भी देते हैं एक बार, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो ये कोऑर्डिनेट्स देखिए x1 y1 अज्यूम कर लिया हमने, और ये x2 y2. वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी. देखिए यहां पर x2 6 माइनस x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 1 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यानी 4 प्लस 2 6 स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का 36, तो 36 प्लस 1 रूट 37. तो ए बी जो डिस्टेंस आ गया एक साइड की लेंथ वो रूट 37 आ गई. अब बी सी चेक कर लेते हैं एक बार. बी सी again using the same formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने यहां इसके अज्यूम किए थे अभी, अब b को x1 y1 मान लेते हैं और c को x2 y2. तो क्या बनेगा देखिए, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 के 6, 7 माइनस 6 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू माइनस 2 माइनस y1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 यानी माइनस 6 स्क्वायर, अगेन रूट 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो विच इज इक्वल्स टू रूट 37. तो देखिए दो साइड्स आ गई, दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है. सीए भी चेक कर लेते हैं एक बार. तो सीए के लिए पॉइंट सी के वर्टिसेस हमने x2 y2 लिखे हुए हैं. ए के अगेन x1 y1 लिख लेते हैं. देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 और माइनस 2 प्लस 2 0 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 विच इज इक्वल्स टू 2. तो क्लियर हो गया. देखिए ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का. लिखा है in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D. 4 पॉइंट्स पे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, as shown in the figure. ये फिगर देखिए हमारे पास गिवन है. यहां पर ये क्लासरूम में हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से शो किया हुआ है. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और D. इन 4 पॉइंट्स पर 4 फ्रेंड्स बैठे हैं. हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. देखिए पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट 3 है और y एक्सिस पे 4 के सामने, तो a के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 3 4. पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे 6 के सामने है और y एक्सिस पे 7 के सामने, तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 6 7. पॉइंट d के कोऑर्डिनेट्स देखिए, पॉइंट d भी x एक्सिस पे 6 के सामने है और y एक्सिस पे 1 के सामने, तो पॉइंट d के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 6 1. पॉइंट c के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 9 के सामने है और y एक्सिस पे 4 के सामने, तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 9 4. तो ये 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी पॉइंट्स पे बैठे हैं. हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए. अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं इस तरह से ए डी
AB, BC और CD, राइट। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, चंपा और चमेली दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इस क्लास में एंटर किया और ऑब्जर्व किया। आफ्टर ऑब्जर्वेशन चंपा सेज, चमेली से कह रही है, वो क्या कह रही है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, कि जो ये ABCD बन रहा है ये स्क्वायर बन रहा है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली सेज नो। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, हमें चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कि चंपा जो कह रही थी कि ABCD एक स्क्वायर है वो ठीक है, या चमेली जो उससे डिसएग्री कर रही थी कि ये स्क्वायर नहीं है कुछ और है वो ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो वेरीफाई करना है वो है स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये तो पहली प्रॉपर्टी है स्क्वायर की कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो हमारा ABCD है उसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आना चाहिए। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्वायर में वो क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स की जरूरत क्यों पड़ती है चेक करने के लिए, डायगोनल्स बनेंगे इसके AC और BD, क्योंकि ABCD जो चारों साइड्स हैं वो तो स्क्वायर में तो इक्वल होती है, रोम्बस में भी इक्वल होती है। सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में फर्क यही है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस के इक्वल नहीं होते। हमें ये स्क्वायर चेक करना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ, लिख देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहां पर, जिनको हमने चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कि डिस्टेंसेस क्या क्या आएंगे उनके। तो पॉइंट A है, देखिए कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं 3 4, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं 6 7, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आए थे 9 और 4, और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आए थे 6 और 1। तो लेट्स चेक AB, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखिए AB के अंदर मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेते हैं, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 होता है और 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 अगेन 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 रूट 18। तो देखिए AB जो साइड है उसका मेजरमेंट रूट 18 आ गया। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे BC, ये B है ये C है, तो अब जो वर्टिसेस हैं B के तो x2 y2 रख लेते हैं, C के आप x1 y1 रख सकते हैं। तो x2 माइनस x1 लगाना है यानी 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन 6 माइनस 9 माइनस 3 आएगा और उसका स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 7 माइनस 4 3 उसका स्क्वायर 9, अगेन इट इज इक्वल टू रूट 18। फिर हम निकालेंगे CD, तो C के वर्टिसेस अब हम देखिए x1 y1 लिखे हुए हैं, D के x2 y2 लिख लेते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 3 आएगा माइनस 3 और उसका स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 माइनस 1 वो भी 3 आएगा माइनस का 3, स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 9, तो 9 प्लस 9 रूट 18। और जो फोर्थ साइड है DA उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए अब ये जो वर्टिसेस हैं हमारे पास पॉइंट D के x2 y2 और पॉइंट A के x1 y1 मान लेते हैं। तो DA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 1 है और y1 4 यानी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 3 और उसका स्क्वायर भी 9 इज इक्वल टू रूट 18। तो देखिए जो चारों साइड्स थी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल्स टू DA, वो चारों साइड्स तो रूट 18 के इक्वल आ गई, यानी पहली कंडीशन जो स्क्वायर की थी वो तो वेरीफाई हो जाती है। अब हमें दूसरी कंडीशन वेरीफाई करनी है, वो क्या है डायगोनल्स।
डायगोनल्स भी हैं जो वो इक्वल होने चाहिए, और डायगोनल कौन कौन से थे, वो थे AC इज इक्वल टू BD आना चाहिए। तो AC डायगोनल कैलकुलेट करें, देखिए यानी अब A और C के अंदर हमें लगाना है, तो A के वर्टिसेस तो x1 y1 मान लेते हैं और C के x2 y2, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से हटा देते हैं D के कोऑर्डिनेट से। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 4 y1 भी 4, तो 4 माइनस 4 यानी 0 होल स्क्वायर। तो ये आएगा देखिए सॉल्व करके इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0 विच इज इक्वल टू रूट 36 विच इज इक्वल टू 6। सिमिलरली दूसरा डायगोनल BD कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए B के वर्टिसेस यहां लिख लेते हैं x1 y1, ये हटा देते हैं यहां से, और C के भी हटा देते हैं क्योंकि हमने B और D को लेकर चलना है, तो D के मान लेते हैं x2 और y2। देखिए B और D में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 6 होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 6 आपको पता है 0 आता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, y2 1 और y1 7, तो 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो 0 आ गया और 7 माइनस 1 6 होता है, माइनस का आएगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर करने तो पॉजिटिव हो जाएगा, रूट 36 विच इज इक्वल टू 6 अगेन। तो इसका मतलब डायगोनल भी इक्वल आ गया, AC इक्वल टू BD इक्वल टू 6। तो इसका मतलब चंपा जो थी वो ठीक थी, ABCD इज ए स्क्वायर, चंपा वाज राइट एंड चमेली वाज नॉट राइट। तो देखा बच्चों आपने, ये थे एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक की क्लास 10th के बच्चों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके आज हमने आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, जिनमें जो फॉर्मूला यूज किया वो था डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से देखना है और वीडियो को बार बार देखना है, लाइक जरूर करना है। क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।